students. I hope you all are fine and doing well in your studies. We have already started with chapter number 5, that is acid, base and salts. Today we will be discussing the last two topics of our chapter, right? That is neutralization and neutralization in everyday life. As we in the previous class we have discussed about what are acids, what are base, what are various indicators that we use in order to find whether the given substance is acid or base. So today we will be discussing the next topic, that is neutralization. So as we have discussed, like acid, when litmus paper is added in the acid, it turns blue litmus red paper, right? The color of the paper changes from blue to red, and in base, red litmus paper changes to blue, right? Neutralization reaction we will be discussing when acids reacts with base, it forms salt and water. Along with that, heat energy is produced. Okay, heat energy is produced, right? So this is a neutralization reaction. What is neutralization reaction? A reaction in which acids react with base to form salt and water with the evolution of heat energy. A very simple definition. अगर ये equation आपको याद रह गया तो ये definition याद हो ही जाएगी. What is the define? The reaction between acid and base to produce salt and water with the evolution of heat energy is called neutralization reaction. Okay, so here in your textbook one more indicator has been discussed in this topic, that is phenolphthalein. Okay, phenolphthalein indicator has been used. Indicator which is used is phenolphthalein, right? Phenolphthalein in acidic condition, the phenolphthalein from pink color, it turns to colorless. What? From pink the solution becomes colorless. And whereas in basic condition, in base it turns colorless to pink. What? It turns colorless to pink, right? Pink color solution आपका बन जाएगा colorless से. Okay. So neutralization reaction generally you will be discussing, इसके आप practicals करोगे in the 11th and 12th standard. ठीक है, 11th and 12th में साइंस आएगा, उसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करोगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी यू विल बी परफॉर्मिंग वेयर यू विल सी कि एसिड है. ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब, चलो थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं. इन अ टेस्ट ट्यूब देयर इज अ एसिड. ओके, टेस्ट ट्यूब में क्या है? एसिड इज देयर. ओके, एंड इसके अंदर क्या मैंने ऐड किया है? प्लस इंडिकेटर. विच इंडिकेटर आई हैव एडेड? phenolphthalein indicator I have added. So ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कलरलेस होगा. Now drop by drop I am adding what? I am adding base. क्या ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर? ड्रॉप बाय ड्रॉप I am adding base. Okay, so base आएगा तो क्या करेगा? Base will neutralize this acid. Drop by drop I will add and I will shake. So what will happen? The acid will react with base to form salt and water. Okay, when will I know whether the reaction of acid has been neutralized by base? ठीक है, एसिड का इफेक्ट जो है वो बेस ने न्यूट्रलाइज करा, या बेस का इफेक्ट जो है वो एसिड ने न्यूट्रलाइज कंप्लीटली किया कि नहीं? हाउ विल आई नो? सो आई विल ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप, आई विल शेक. ओके, कलर इज व्हाट आई विल सी, कलरलेस है अभी भी. सो और ड्रॉप्स ऐड करूंगा, फ्यू मोर ड्रॉप्स आई विल ऐड. Again what I will see,
आई विल शेक एंड सी कि वेदर देयर इज अ चेंजिंग कलर और नॉट. अगर स्टिल द कलर इज कलरलेस मतलब क्या है, और एसिड अंदर है, ड्यू टू विच द होल सॉल्यूशन इज एसिडिक, राइट. देन furthermore I will add an acid, base I will add, sorry I will add what, base, in order to neutralize this acid. और एसिड ऐड करूंगा, एक पॉइंट आएगा तब क्या होगा, हल्का सा पिंक कलर आएगा. मींस व्हाट विल हैपन, दिस ऑल एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस. आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर करके आप व्हाट यू हैव फाइनली कम आउट लाइक ऑल द एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, और स्लाइटली एक आध ड्रॉप ज्यादा हो बेस होने के कारण व्हाट हैपेंस, द होल सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक. एंड बेसिक होगा तो क्या आएगा, द कलर विल बी स्लाइटली पिंक. ओवर देयर यू विल गेट के कंप्लीट एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर लिया है बेस ने. सो दिस रिएक्शन इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एसिड का नहीं होता है. न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल मींस व्हाट, एसिड की इफेक्ट बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है, या बेस है उसकी इफेक्ट एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है. Understood? That is the meaning of the neutralization reaction, right? I hope you understood this. Now there are various acids we can take. ठीक है, so in your textbook अपने in your textbook they have taken hydrochloric acid, तो हमने यहाँ लिखते हैं hydrochloric acid, right? Base they have taken sodium hydroxide, so we will take sodium hydroxide as a base. नाउ दिस ऑल आर केमिकल्स. ठीक है, आपको अभी ये कैसे, क्यों इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaOH. व्हाई डू वी से NaOH, ये सब कुछ तुम अभी क्या आएगा, 9th स्टैंडर्ड में आएगा. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl. ओके, इट विल फॉर्म व्हाट, सॉल्ट. तो देखो अभी फॉर टाइम बीइंग आप कैसे याद रखोगे, Na एंड Cl, क्या बना दोगे, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl. वाटर तो हमको पता है ये H2 होता है, नहीं पता है तो देखो OH एंड H, तो H एंड H, H2 और O दैट इज वाटर. अंडरस्टूड? सो एक बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. फाइन. नाउ द लास्ट topic of our chapter we will be moving on, that is neutralization in everyday life. Okay, neutralization in everyday life. What is neutralization in everyday life means? Okay, neutralization in everyday life means what, हम ये जो रिएक्शन देखा न्यूट्रलाइजेशन स्टेप्स, ओके, दैट एसिड it cancels the effect of base or neutralize the effect of base, और base है that neutralizes the effect of acid. So this where do we use in our daily life, है ना, हम इसका कहाँ यूज करते हैं, सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर अस ह्यूमंस, हमारे लिए बेनिफिट और काम आसान हो जाए. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, न्यूट्रलाइजेशन इन everyday life, right? In everyday life. So neutralization in everyday life, the very first topic that we are going to discuss in this is indigestion. क्या है indigestion? राइट, indigestion क्या होता है? सो मेनी अ टाइम्स यू फील लाइक आपका जो खाना जो खाया है, फूड दैट यू हैव टेकन हैज नॉट अंडरगोन प्रॉपर डाइजेशन. व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में वी हैव डिस्कस इन स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच व्हाट प्रोटीन का डाइजेशन होता है, राइट? सो समटाइम्स व्हाट इफ यू हैव नॉट ईटन थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम, या आपने कुछ बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, राइट? देयर इज सो मच और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज बीन देयर. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना है, वी हैव टू न्यूट्रलाइज. व्हाई? बिकॉज वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण फूड इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, ड्यू टू व्हिच व्हाट हैपेंस, यू विल डिस्कम्फर्ट, you will feel pain in the stomach, right? So
उसका सॉल्यूशन क्या है? सो एसिड ज्यादा है तो क्या करेंगे? एज सिंपल एज दैट, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ऐड करेंगे. सो हम मेडिसिन्स वी यूज दैट इज कॉल्ड एंटासिड्स. एंटासिड्स करके मेडिसिन आती है, राइट? ओके, एंटासिड्स है. देन वी कैन टेक व्हाट यू से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, इसका एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस. ओके, दिस इज अ बेस. सो क्या होगा? व्हेन आई विल कंज्यूम दिस एज अ मेडिसिन, तो व्हाट विल हैपन? When I will consume this, so it will neutralize excess amount of acid in the stomach and hence will solve the problem of indigestion. So what we will feel relief from the pain in the stomach, right? Okay. The next one application is ant bite. Second one is ant bite. Okay, now ant bite मतलब चींटी ने आपने काट लिया है, तो what we when the ant bites on our body, right? So क्या होता है? We feel very burning sensation, और खुजली आती है और पूरा फूल जाता है और जलता है हमको, right? We feel burning like sensation. Why? Because ant has secreted और inject the acid in our body. कौन से एसिड को इंजेक्ट किया है? फॉर्मिक एसिड. ओके, ड्यू टू विच क्या होगा? एसिड है तो इट विल कॉज सम बर्निंग सेंसेशन. सो क्या करेंगे अब इसका सॉल्यूशन? हम लगाएंगे इसके ऊपर क्या? बेकिंग सोडा. क्या लगाएंगे? इसको न्यूट्रलाइज करेंगे कैसे? बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा, राइट? बेकिंग सोडा क्या है? बेस है. या फिर इन मेडिकल स्टोर या आपके पेरेंट्स को पता होगा कैलेमाइन लोशन आता है. ठीक है, कैलेमाइन लोशन आता है विच इज व्हाट? जिंक कार्बोनेट. ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? जिंक कार्बोनेट सॉल्यूशन. ठीक है, दिस कंटेन्स व्हाट? बेस. इनके अंदर क्या होता है? बेस होता है. सो ऑन अप्लाइंग वन और रबिंग फॉर सम टाइम ऑन द एरिया ऑन वेयर द एंड हैज बाइट हैज, सो व्हाट विल हैपन? वो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड यू विल गेट अ रिलीफ फ्रॉम दैट इफेक्ट, राइट? सो ये क्या कर रहे हैं? ये हम हमारे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ यूज कर? दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक नाउ. द थर्ड वन, ओके, द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट, व्हाट इज देयर इन सॉइल ट्रीटमेंट? सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है? सो मेनी टाइम्स व्हाट इफ यू बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि जनरली ईच एंड एवरी प्लांट डज नॉट ग्रो इन एनी सॉइल. सर्टन प्लांट्स ग्रो इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक, थोड़ा स्लाइट एसिडिक सॉइल होगा ना तो ग्रो होगा. सर्टन प्लांट्स विल ग्रो इन बेसिक मीडियम या सॉइल बेसिक होगा तब. एंड सर्टन प्लांट्स विल ग्रो इन न्यूट्रल मीडियम. अब फार्मर है दुविधा में, फार्मर इज इन कंफ्यूजन कि व्हाट टू डू. अब ये सॉइल है वो एसिडिक, इट इज टू मच एसिडिक and I want to grow a plant which requires neutral medium या basic medium. So what he will do? अब वो पहले तो acidic क्यों हुआ? Why the medium या फिर आपका जो soil है वो slightly acidic क्यों हो गया है? Because हम grow करने के लिए क्या करते हैं? We add nutrients, right? Nutrients के form में क्या add करते हैं? We add fertilizers, chemical fertilizers. जो क्या करते हैं? They increase the acidity of the soil, जिसके कारण क्या होगा? सॉइल का मीडियम चेंज हो जाएगा. मीडियम मतलब सॉलिड, मतलब एसिड है वो बेस हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन? एसिडिक मीडियम है, एसिडिक सॉइल है. अगर इफ द सॉइल इज एसिडिक, सो क्या करूंगा मैं उसके अंदर? आई विल ऐड, व्हाट आई विल डू? आई विल ऐड बेस. ठीक है, बेस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? क्विकलाइन. ओके, कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइन. बेस लाइक क्विकलाइन, राइट? या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है? क्विकलाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड. एंड क्विकलाइन आल्सो आई कैन ऐड, दैट इज, सॉरी, ये क्या है? क्विकलाइन में. और एक है लाइम वाटर. लाइम वाटर इज
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये बेस ऐड करके क्या किया मैंने, एसिडिक जो सॉइल था आई हैव न्यूट्रलाइज द इफेक्ट सो दैट आई कैन नाउ ग्रो माई प्लांट इन न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम। ऑपोजिट इज द केस, अगर आपको एसिडिक मीडियम का सॉइल चाहिए, यू हैव बेसिक, सो व्हाट यू विल डू, आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे। क्या, अगर सॉइल बेसिक हुआ, ठीक है, सो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एड यू हैव टू ऐड एसिड्स, और एसिड के लिए क्या ऐड करोगे, विल ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब फूड, जो अपने जैसे फूड्स होते हैं उसके ऊपर जो छिलके होते हैं, दैट इफ यू ऐड एंड थ्रो इट एंड पुट इट इनटू द सॉइल, ठीक है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ब्रिंग आउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, दे विल प्रोड्यूस एसिड्स विच विल यूटिलाइज द बेस या बेसिक मीडियम ऑफ द सॉइल, राइट। So this is how the medium of the soil is changed. Okay, and the last one, that is factory waste. Factory waste, right? Factory waste में, right, we generally know कि factories में से chemicals are secreted. Chemicals secreted. Factories में से what the chemicals are thrown, right, which are waste, which are acidic in medium. Now when they are thrown, ठीक है, और when they are released in the water bodies. Now water bodies में तो क्या होगी, my organisms will be there, right, aquatic organisms हो गए like fish, right. So what will happen, they will die. क्यों, क्योंकि भाई एसिड में थोड़ा ना वो ग्रो हो गया। अभी आप वाटर बॉडीज है उसके अंदर आप एसिड ऐड कर रहे हो, केमिकल, ठीक है, फैक्ट्रीज में से वेस्ट फॉर्म में रिमूव हो रहा है वो। So the water bodies का जो medium है that will become acid, and aquatic plant won't able to survive. Aquatic animals will not able to survive like fish है and other animals, right? So क्या करते हैं, from the government guideline it is being compulsorily said कि आपका factory waste should be neutralized with the base so that it does not affect the aquatic life. समझ आया? So these are where the applications where we use neutralization reaction in our life, right. So I hope you have understood the whole chapter thoroughly, और एकदम important chapter है this, because the same chapter in very detail you will be discussing in 10th. So any doubts if you have, feel free to ask in the lecture. Thank you class.